اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ مورخوں نے مسلمہ کے لشکر کی تعداد 30,000 لکھی ہے۔ بہرحال تعداد 40,000 سے زیادہ تھی، کم نہ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی ایک کمزوری تو یہ تھی کہ لشکر کی تعداد خطرناک حد تک کم تھی۔ دوسری کمزوری یہ کہ وہ اپنے مستقر سے بہت دور تھے، جہاں کمک اور رسد کا پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ انہیں صرف ایک سہولت حاصل تھی، اس علاقے میں پانی اور جانوروں کے لیے ہرے چارے کی کمی نہیں تھی۔ وہ زرخیز کھیتوں اور باغوں کا علاقہ تھا۔ مسلمہ کو ہرے بھرے کھیتوں اور باغوں کا غم کھا رہا تھا۔ اس نے رجال سے کہا کہ وہ ایسے انداز سے لڑنا چاہتا ہے کہ مدینہ کا لشکر بستیوں کو، کھیتوں کو اور باغوں کو نہ اجاڑ سکے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مسلمہ کسی قسم کے تذبذب، اضطراب یا پریشانی میں مبتلا نہ تھا۔ وہ اس طرح سے بات کرتا تھا جیسے اسے اپنی فتح کا یقین ہو۔ وہ بڑی موزوں بنیادوں پر کھڑا بات کر رہا تھا۔ اس کا 40,000 کا لشکر برتر بھی تھا اور یہ سب مسلمہ کے نام پر جانیں قربان کرنے والے تھے۔ مسلمہ کی نبوت کا تحفظ ان سب کے لیے جنون بن چکا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ پھندے میں آنے والے سالار نہیں تھے۔ موتا میں وہ پھندے میں آ چکے تھے۔ یمامہ کے علاقوں سے وہ واقف نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال اور آگے کی زمین کا جائزہ لینے کے لیے ایک پارٹی بھیج دی۔ رات کو اس پارٹی نے جو رپورٹ دی اس کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا راستہ بدل دیا تاکہ حنیفہ کی وادی کے اندر سے نہ گزرنا پڑے۔ وہ ذرا دور کا چکر کاٹ کر آگے نکل گئے۔ مسلمہ نے بھی دیکھ بھال کا انتظام کر رکھا تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ مدینہ والے آگے نکل گئے ہیں تو اس نے اپنا لشکر بڑی تیزی سے اقربہ کے میدان میں منتقل کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی نظر اسی میدان پر تھی، لیکن دشمن پہلے پہنچ گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ دیکھ لی جو میدان سے بلند تھی۔ انہوں نے وہیں اپنا لشکر روک لیا۔ وہاں سے وہ مسلمہ کے پڑاؤ کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ مسلمہ نے اسی میدان کو بہتر اور موزوں سمجھا۔ ایک تو اس نے اپنے لشکر کا تمام تر ساز و سامان اور مال و اسباب اپنی خیمہ گاہ سے پیچھے رکھا تھا۔ دوسرے یہ کہ کھیتیاں اور باغات بھی لشکر کے پیچھے تھے۔ ان سب کی وہ بڑی اچھی طرح سے حفاظت کر سکتا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ یہاں سے آگے یمامہ کو بڑھے تو وہ ان پر عقب سے حملہ کر دے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی اس صورت کو بھانپ چکے تھے کہ وہ یہاں سے آگے بڑھے تو مارے جائیں گے۔ مسلمہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے دائیں حصے کی قیادت رجال کو دی، بائیں حصے کا سالار محکم بن طفیل تھا اور درمیان میں یعنی قلب میں وہ خود رہا۔ اس نے اپنے بیٹے کو جس کا نام شرحبیل تھا کہا کہ وہ لشکر سے خطاب کرے۔ ایک شرحبیل بن حسنہ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے سالار تھے۔ مسلمہ کے بیٹے کا نام بھی شرحبیل تھا۔ شرحبیل گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کے 3 حصوں کے سامنے باری باری جا کر کہا، اے بنو حنیفہ، آج اپنی آن اور اپنی آبرو پر مر مٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ خدا نے تمہارے نبی کو نبوت دی ہے۔ آج اپنی نبوت اور آبرو کی خاطر اس طرح لڑو کہ مسلمانوں کو پھر کبھی تمہارے سامنے آنے کی جرت نہ ہو۔ اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو دشمن تمہاری بیویوں، تمہاری بہنوں اور تمہاری بیٹیوں کو لونڈیاں بنا لے گا اور اس زمین پر ہی جو تمہاری زمین ہے ان کی آبرو لوٹے گا۔ کیا تم یہ منظر برداشت کر لو گے؟ مسلمہ کے لشکر کو جیسے آگ لگ گئی ہو۔ وہ مسلمہ کے نام کے نعرے لگا رہے تھے۔ گھوڑے کھر مار مار کر ہنہنانے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے کہ مسلمہ کا لشکر ان پر فوراً حملہ کر دے۔ نفری کی افراد کے زور پر مسلمہ کو حملہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ وہ جنگ کے فن میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے حملے میں پہل نہ کی۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے خالد رضی اللہ عنہ حملہ کرے اور دفاع میں لڑا جائے، اور جب مسلمان تھک جائیں تو دائیں بائیں سے حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا جائے۔ اس دور کی تحریریں بتاتی ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ مسلمہ کی چال نہ سمجھ سکے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ مرتدین سے آمنے سامنے کی جنگ اس طرح لڑی جائے گی کہ اسے اپنے دستوں کو ادھر ادھر کرنے کی مہلت نہ ملے اور وہ دفاعی لڑائی لڑتا رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو توقع تھی کہ 13,000 سے 40,000 کو اسی طریقے سے شکست دی جا سکتی ہے کہ اسے کوئی چال چلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ کو بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھائیں۔ خلیفۃ المسلمین نے خالد رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے جو دستے بھیجے تھے ان میں قرآن کے حافظ اور خوش الحان قاری بھی خاصی تعداد میں تھے۔ اس دور کے حافظ قرآن اور قاری ماہر تیغزن اور لڑنے والے بھی ہوتے تھے۔ وہ صرف مسجدوں میں بیٹھے رہنے والے نہیں تھے۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ہر میدان میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو شکستیں دی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر میں عمر بن الخطاب کے بھائی زید بن الخطاب اور ان کے بیٹے عبداللہ بھی تھے۔
उसके अलावा अबू दुजाना भी थे जो जंग उहुद में उन तीरों के सामने खड़े हो गए थे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ रहे थे। उन्होंने अपने जिस्म को आप अलैहिस्सलाम की ढाल बना दिया था। खलीफतुल मुस्लिमीन के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर थे और एक खातून उम्मे अम्मारा अपने बेटे के साथ गई थी। उम्मे अम्मारा जंग उहुद में बाकायदा लड़ी थी। इनके अलावा वहशी नाम का हबशी भी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ था जिसकी फेंकी हुई बर्छी निशाने से बाल बराबर इधर उधर नहीं होती थी। कबूल इस्लाम से पहले जंग उहुद में उसी ने हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को बर्छी फेंक कर शहीद किया था। मुजाहिदीन का लश्कर तादाद में तो कम था लेकिन जोश जिहाद और जज्बे के लिहाज से कमतर न था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद भी अपने लश्कर का हौसला बढ़ाया और कुरान के हाफिजों और कारियों से कहा कि वो मुजाहिदीन मदीना को आयात कुरानी सुनाकर बताएं कि वो घरों से इतनी दूर किस मकसद के लिए लड़ने आए हैं। कारी अपनी पुरअसर आवाजों में लश्कर को वो आयात सुनाने लगे जिनमें मुसलमानों के लिए जिहाद फर्ज करार दिया गया है। ये सिलसिला रात भर चलता रहा। अल्लाह के सिवा और कौन था जो इन कलील तादाद मुजाहिदीन इस्लाम की मदद करता। मौरखीन के मुताबिक मुजाहिदीन के उस लश्कर ने तमाम रात इबादत और दुआओं में गुजार दी। दिसंबर 632 ईस्वी के तीसरे हफ्ते की एक सुबह तुलू हुई तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमा के लश्कर पर हमले का हुक्म दे दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। कल्ब की क़यादत उन्होंने अपने पास रखी थी। एक तरफ अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरी तरफ ज़ैद बिन खत्ताब थे। मुसलमान जिस कहर व ग़ज़ब से हमलावर हुए और जिस बेजिगरी से लड़े वो देखकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को उम्मीद बंध गई कि वो मुर्तदीन के लश्कर को उखाड़ फेंकेंगे। खुद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे लेकिन खासा वक्त गुजर जाने के बाद भी मुसलमा का लश्कर जहाँ था वहीं रहा। बहुत से मुजाहिदीन पहले हल्ले में ही शहीद हो गए। दिन गुजरता जा रहा था। मैदान जंग का कहर बढ़ता जा रहा था। एक शोर था, चीखो पुकार थी, कर्बनाक आहो बुका थी जो जमीनों आसमान को हिला रही थी। मुसलमा का लश्कर घूम फिर कर लड़ रहा था। उसकी कोशिश ये थी कि मुसलमानों को घेर में ले ले और मुसलमानों का अज़्म ये था कि मुर्तदीन के इस लश्कर के कदम उखाड़ने हैं और यमामा पर कब्जा करना है। दोनों लश्कर अपनी अपनी कोशिशों में नाकाम हो रहे थे। अगर कामयाब था तो वो मुसलमा का लश्कर था। मुसलमा बहुत चालाक और होशियार जंगी कायद था। वो जायजा लेता रहा कि मुसलमान कब थक कर चूर होते हैं। आधा दिन गुजर गया। जमीन खून से लाल होती जा रही थी। जख्मी इंसान भागते दौड़ते घोड़ों तले कुचले जा रहे थे। मुसलमान इस कदर बेजिगरी से लड़ने की वजह से कुछ जल्दी थक गए। मुसलमान ने भांप लिया। उसने अपने लश्कर के एक ताजा दम हिस्से को मुसलमानों पर हमले का हुक्म दे दिया। उसके लश्कर का ये हिस्सा तूफानी मौज की तरह आया। मुसलमान ने सबको यकीन दिला रखा था कि जो उसकी नबूवत की खातिर लड़ता हुआ मरेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने थोड़ी ही देर के बाद महसूस कर लिया कि उसके लश्कर पर दबाव बहुत तेज हो गया है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु कोई चाल सोच ही रहे थे कि मुसलमानों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। आगे वाले दस्ते तेजी से पीछे हटे, पीछे वाले उनसे ज्यादा तेजी से पसपा हुए। सालारों ने बहुत शोर मचाया, लश्कर को पुकारा, नारे लगाए, लेकिन मुर्तदीन का दबाव ऐसे कहर की सूरत इख्तियार कर गया था जिसे मुसलमान बर्दाश्त न कर सके और उनमें बदनज़मी फैल गई। देखा देखी मुसलमान ऐसी बुरी तरह पसपा हुए कि अपनी खैमागाह में भी न रुके और दूर पीछे चले गए। मुसलमान के लश्कर ने उनका ताक़ुब किया। उहुद के मैदान में भी मुसलमानों ने अपने लिए ऐसी ही सूरत हाल पैदा कर ली थी और हजीमत उठाई थी। ये उनकी दूसरी पसपाई थी जो भगदड़ की सूरत इख्तियार कर गई थी। मुसलमानों का लश्कर जब मुसलमानों की खैमागाह तक पहुंचा तो उसने वहां लूट मार शुरू कर दी। वहां उन्हें रोकने वाला कोई न था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके सालार दौड़ दौड़ कर अपने लश्कर को रोकने के लिए चीख चिल्ला रहे थे, लेकिन मुसलमान अपनी खैमागाह से खासी दूर जाकर रुके। मुसलमान के कुछ आदमियों को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का खैमा मिल गया। वो उसमें जा घुसे। वहां उन्हें ज्यादा मालो दौलत मिलने की तवक्को थी, लेकिन उस खैमे में उन्हें 2 इतने कीमती इंसान मिल गए जिनकी उन्हें तवक्को नहीं थी। एक तो उनका अपना सरदार और सालार मुजाह था जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, और उसके साथ खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की नई बीवी लैला उम्मे तमीम थी जिसके हुस्न के चर्चे उन्होंने सुन रखे थे लेकिन उसे देखा कभी नहीं था। मुजाह को तो उन्होंने पहचान लिया। लैला के मुतालिक उन्हें मुजाह ने बताया कि ये कौन है। बैक वक्त 2-3 आदमी लैला की तरफ लपके। वो उसे कत्ल करना या अपने साथ ले जाना चाहते थे। उनके कैदी सरदार मुजाह ने हुक्म दिया, रुक जाओ।
दुश्मन के आदमियों के पीछे जाओ, अभी औरतों के पीछे पड़ने का वक्त नहीं। मैं अब इसका नहीं, ये मेरी कैदी है। उनके सरदार का हुक्म इतना सख्त था कि वो बड़ी तेजी से खेमे से निकल गए। उन्हें इतना भी होश न रहा कि अपने सरदार की बेड़ियां ही तोड़ जाते। लैला ने मुजा से पूछा, तुमने मुझे इन आदमियों से क्यों बचाया? क्या तुम मुझे अपना माल गनीमत समझते हो? अगर तुम्हारी यही नीयत है तो क्या तुम्हें ये एहसास नहीं कि मैं तुम्हें कत्ल कर सकती हूँ? मुजा ने कहा, तुमने मेरे साथ जो अच्छा सलूक कैद के दौरान किया है, मैं उसके सिले में अपनी जान दे सकता हूँ। खुदा की कसम, मेरी बेड़ियां टूट कर तुम्हारे पाँव में पड़ जाएं तो भी मैं तुम्हें माल गनीमत या लौंडी नहीं समझूंगा। तुमने मुझे कैदी नहीं, मेहमान बना कर रखा है। लैला ने कहा, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। ये मुसलमानों की रिवायत है कि दुश्मन उनके घर चला जाए तो वो उसे मौजूद मेहमान समझते हैं। अगर तुम मेरे घर में होते तो मैं तुम्हें और ज्यादा आराम पहुंचा सकती थी। मुजा ने कहा, लैला, क्या तुझे अभी एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारा खावंद शिकस्त खाकर भाग गया है और तुम मेरे कब्जे में हो? लैला ने जवाब दिया, फतह और शिकस्त का फैसला खुदा करेगा। मेरा खावंद इससे ज्यादा सख्त चोटें बर्दाश्त कर सकता है। मुजा ने फातिहाना मुस्कुराहट से कहा, कम फहम खातून, क्या तुझे अभी तक एहसास नहीं हुआ कि खुदा मुसलमा के साथ है जो उसका सच्चा नबी है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत सच्ची होती। लैला ने गरज कर उसकी बात वहीं खत्म कर दी और बोली, मुजा, अगर तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के खिलाफ कोई बात की तो मुझ पर तेरा कत्ल फर्ज हो जाएगा। मैं देख रही हूँ कि मेरा लश्कर मुझे इस खैमागाह में अकेला छोड़कर भाग गया है जहाँ मेरे दीन के दुश्मन लूट मार कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिल पर जरा भी खौफ नहीं। खौफ इसलिए नहीं कि मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। मुजा खामोश रहा और वो कुछ देर नजरें लैला के चेहरे पर गाड़े रहा। बाहर फातिह लश्कर का फातिहाना गुल कपाड़ा था। वो मुसलमानों के खैमों को फाड़ फाड़ कर उनके टुकड़े बखेर रहे थे। मुजा और लैला को तवक्को थी कि अभी मुसलमा के आदमी आएंगे और दोनों को साथ ले जाएंगे, लेकिन अचानक गुल कपाड़ा खत्म हो गया और लूट मार करने वाले भागते दौड़ते खैमागाह से निकल गए। इसकी वजह ये थी कि मुसलमा की तरफ से हुक्म आया था कि फौरन वापस मैदान अकरबा में पहुंचो, क्योंकि मुसलमा ने देख लिया था कि मुसलमान बड़ी तेजी से इकट्ठे होकर मुनज़्ज़म हो रहे थे। मुसलमा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। वो मुसलमानों की शुजाअत और उनके जज्बे से मरूब था। मुजा और लैला खेमे में अकेले रह गए। मुजा के चेहरे पर जो रौनक आई थी वो फिर बुझ गई। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। जाया करने के लिए उनके पास एक लम्हा भी नहीं था। उन्होंने अपने सालारों और कमांडारों को इकट्ठा किया और उन्हें इस पसपाई पर शर्म दिलाई। इतने में एक घोड़ा सरपट दौड़ता आया और सालारों वगैरह के इज्तिमा में आ रुका। वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई ज़ैद बिन खत्ताब थे। वो घोड़े से कूद कर उतरते हुए जोशीली आवाज में बोले, खुदा की कसम इब्न वलीद, मैंने मुसलमा का दायां हाथ काट दिया है। मैंने रिजाल को अपने हाथों कत्ल किया है। ये अल्लाह का इशारा है कि फतह हमारी होगी। रिजाल का हलाक हो जाना मुसलमा के लिए कोई मामूली नुकसान नहीं था। बताया जा चुका है कि वो मुसलमा का मोतमिद खास, वाहिद मुशीर और सही मानों में दस्ते रास्त था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके सालारों ने ये खबर सुनी तो उनके चेहरों पर ताज़ा हौसलों की सुर्खी आ गई। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने गुस्सीली आवाज में कहा, क्या तुम जानते हो कि हमें किस जुर्म की सजा मिली है? मुझे बताया गया है कि हमारे लश्कर में दिल फट गए थे। लड़ाई से पहले ही हमारे लश्कर के महाजिर कहने लगे थे कि बहादुरी में अंसार और बद्दू उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अंसार कहते थे कि मुसलमानों में उन जैसा बहादुर कोई नहीं, और बद्दुओं ने कहा कि मक्का और मदीना के लोग तो ये भी नहीं जानते कि जंग क्या होती है। तुम जानते हो कि हम में मक्का के महाजिर भी हैं, मदीने के अंसार भी हैं और इर्द गिर्द के इलाकों से आए हुए बद्दू भी। इन सब ने एक दूसरे पर तानाजनी शुरू कर दी थी। एक सालार ने कहा, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मेरे पास इसका इलाज है। हमने लश्कर में उन सबको इकट्ठा रखा हुआ है। मजीद वक्त जाया किए बगैर तुम सब जाओ और महाजरीन को अलग, अंसार को अलग और बद्दुओं को अलग कर लो। थोड़े से वक्त में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म की तामील हुई और लश्कर 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा महाजरों का, दूसरा अंसार का और तीसरा बद्दुओं का। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु घोड़े पर सवार उनके सामने जा खड़े हुए। बुलंद आवाज में बोले, अल्लाह के सिपाहियों, हमने मैदान में पीठ दिखाकर दुश्मन के लिए हंसी और तानाजनी का मौका पैदा कर दिया है। कौन कह सकता है कि तुम में से कौन बहादुरी से लड़ा और कौन सबसे पहले भाग उठा, महाजरीन, अंसार या बद्दू? अब मैंने तुम्हें इसीलिए अलग अलग कर दिया है कि दुश्मन पर फौरन जवाबी हमला करना है। अब देखेंगे कि तुम में से कौन कितना बहादुर है। बहादुरी और बुज़दिली का फैसला तानाजनी से नहीं किया जा सकता। मैदान में कुछ करके दिखाओ, लेकिन इत्तेहाद को हाथ से न जाने देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जिस बाहमी प्यार का सबक दिया वो भूल न जाना। तुम में से कोई गुरोह दुश्मन के दबाव को बर्दाश्त न करते हुए पीछे हटे तो दूसरे गुरोह उसकी मदद को पहुंचे। हमें दुश्मन पर साबित करना है कि मुसलमान झूठा नबी है। अगर हम शिकस्त खा गए तो ये झूठी नबुव्वत हम पर मुसल्लत हो जाएगी
और हम मुसलमा के गुलाम और हमारी औरतें मुर्तदीन की लौंडियां बन जाएंगी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के ये अल्फाज उन तीरों की तरह कारगर साबित हुए जो अपने निशाने से इधर उधर नहीं जाया करते। लश्कर में नया जोश और नया वलवला पैदा हो गया। उधर मुर्तदीन मुजाहिदीन की खैमागाह लूट कर और तबाह करके जा चुके थे। इधर से मुसलमान इशारा मिलते ही मुसलमा के लश्कर की तरफ चल पड़े। मुसलमा ने अपने लश्कर को फिर रोकने की तरतीब में कर लिया। जब मुजाहिदीन इस्लाम का लश्कर मुकाबले में पहुंचा तो अंसार से एक सरदार साबित बिन कैस घोड़े को एड़ लगाकर लश्कर के सामने आ गए। उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, ए अहले मदीना, तुम एक शर्मनाक मुजाहिरा कर चुके हो। साबित बिन कैस ने दुश्मन की तरफ इशारा करके कहा, ए मेरे अल्लाह, जिस किसी की ये लोग इबादत करते हैं मैं उस पर लानत भेजता हूँ। उन्होंने मुजाहिदीन की तरफ मुंह करके कहा, ए अल्लाह, जो बुरी मिसाल मेरे इस लश्कर ने कायम की है मैं इस पर भी लानत भेजता हूँ। इतना कहकर साबित बिन कैस ने न्याम से तलवार खींची और घोड़े का रुख दुश्मन की तरफ करके एड़ लगा दी। उनके आखिरी अल्फाज ये थे, देखो मेरी तलवार दुश्मन को मजा चखाएगी और तुम्हें हिम्मत और इस्तकलाल का नमूना दिखाएगी। साबित बिन कैस ने घोड़े को एड़ लगाई और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमले का हुक्म दे दिया। मौरिख लिखते हैं कि साबित बिन कैस की तलवार ऐसी शिद्दत और ऐसी महारत से चल रही थी कि जो उनके सामने आया वो फिर अपने पांव पर खड़ा नजर न आया। उनके जिस्म का शायद ही कोई हिस्सा रह गया हो जहां दुश्मन की तलवार बर्छी या अन्नी न लगी हो। दुश्मन के सफों के दूर अंदर जाकर साबित बिन कैस गिरे और शहीद हो गए। अपने लश्कर के लिए वो वाकई हिम्मत और इस्तकलाल का बेमिसाल नमूना पेश कर गए। मोहम्मद हुसैन हैकल ने बाज मौरिखों के हवाले देकर लिखा है कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर ने कस्में खा ली थी कि अब उनकी लाशें ही उठाई जाएंगी, वो जिंदा नहीं निकलेंगे। एक मौरिख ने लिखा है कि उन्होंने कसम खाई कि हाथ में हथियार न रहा, तरकश में तीर न रहा तो वो दांतों से लड़ेंगे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये मिसाल कायम की कि चंद एक जांबाज चुनकर अपने साथ इस अज़म से कर लिए कि जहाँ लड़ाई ज्यादा खतरनाक होगी वहाँ उन जांबाजों के साथ जा कूदेंगे। उन्होंने अपने जांबाजों से कहा, तुम सब मेरे पीछे रहना। आगे वो खुद रहना चाहते थे। दोबारा लड़ाई शुरू हुई तो नई मुसीबत आन पड़ी। आंधी आ गई जिसका रुख मुजाहिदीन इस्लाम की तरफ था। कुछ मौरिख लिखते हैं कि ये सहराई आंधी नहीं थी बल्कि तेज हवा थी। मैदान जंग में घोड़ों और प्यादों की उड़ती हुई गर्द जमीन से उठते बादलों की मानंद थी। तेज और तुंद हवा का रुख मुजाहिदीन की तरफ था, इसलिए मिट्टी और रेत मुसलमानों की आंखों में पड़ती थी। बदर में कुफार के साथ ऐसा ही हुआ था। हवा तेज होती जा रही थी। कुछ मुजाहिदीन ने ज़ैद बिन खत्ताब से पूछा कि ऐसी आंधी में वो क्या करें। ज़ैद बिन खत्ताब ने गरजदार आवाज में कहा, खुदा की कसम, मैं अपने अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे दुश्मन को शिकस्त देने तक जिंदा रखे। ऐ अहले मक्का व मदीना, आंधी से मत डरो, सरों को जरा झुका के रखो। इस तरह रेत और मिट्टी तुम्हारी आंखों में नहीं पड़ेगी। पीछे न हट जाना, हिम्मत से काम लो, इस्तिकलाल को हाथ से न जाने दो। आंधी और तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज़ैद बिन खत्ताब सालार थे। उन्होंने मुजाहिदीन के लिए ये मिसाल कायम की कि तलवार लहराते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। उनके दस्ते उनके पीछे गए। ज़ैद बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु तलवार चलाते हुए दूर तक निकल गए और शहीद हो गए। एक और सालार अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी यही मिसाल कायम की। वो ये नारा लगाकर दुश्मन पर टूट पड़े, अपने आमाल से कुरान हकीम की नामूस को बचाओ। वो भी मुकाबले में आने वाले हर मुर्तद को काटते गए, जख्म खाते गए और शहीद हो गए। उन सालारों ने जाने देकर मुजाहिदीन के अज़्म में जान डाल दी और वो आसमानी बिजलियों की तरह दुश्मन पर टूट पड़ने लगे। उसके बावजूद मुसलमा का लश्कर कायम व दायम था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मैदान जंग का जायजा लिया। ये ऐसी जंग थी कि जिसमें चालें चलने की जरा भी गुंजाइश नहीं थी। ये आमने सामने की टक्कर थी। इसमें सिर्फ जाती शुजाअत ही काम आ सकती थी। Like your status